वेलकम बैक गाइस। सो पिछले दो वीडियोस में एटीसी और एटीडी मेडिक्लेम वाला हमने कवर किया था एंड आई थिंक एवरीबडी नाउ इज अवेयर ऑफ दीज टू सेक्शंस। सो इस वीडियो का पर्पस है कि रिमेनिंग जितने भी सेक्शंस है चैप्टर 6 के वो कवर हो जाए ताकि तीन वीडियोस को मिला के चैप्टर 6 का पूरा नॉलेज यूजर्स को मिल सके। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। So these are the section you can see on the screen we are going to cover today. Okay, so let's start one by one. So before starting, दो simple definition. नंबर वन, सीनियर सिटीजन कौन है? रेसिडेंट ऑफ इंडिया 60 साल या उससे ऊपर। और डिपेंडेंट कौन है? डिपेंडेंट है चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर हु इज होली डिपेंडेंट फॉर द मेंटेनेंस एंड सपोर्ट ऑन यू। या अगर एच यू एफ है तो कोई भी मेंबर ऑफ एच यू एफ। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट सेक्शन 80 DDB किस पे एप्लीकेबल है? इंडिविजुअल और एच यू एफ पे। सो अगर आपके घर में कोई डिसेबल्ड रिलेटिव है and you are taking care of him, medical expenditure, training, rehabilitation or even nursing, then you get a deduction of 75,000. But if the disabled is severely disabled, 80% or more of the body uski disabled hai, then deduction increase to 1,25,000. A certificate from medical authority is required. There is one more point in this. What? If you are not doing medical expenditure, rather you are spending the money in a scheme, एक हेल्थ स्कीम है विच प्रोवाइड्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ दैट डिसेबल्ड रिलेटिव। सो ऐसे स्कीम में भी अगर पैसा लगा रहे हैं तो भी इट्स ओके। नेक्स्ट सेक्शन 80 DDB। व्हाट इज 80 DDB? अगर कोई स्पेसिफाइड डिजीज है आपको या आपके डिपेंडेंट को एंड यू आर मेकिंग पेमेंट फॉर द ट्रीटमेंट, देन यू गेट अ डिडक्शन ऑफ 40,000. और अगर you are senior citizen or your dependent is senior citizen, then the deduction increase to 1 lakh. I hope this is also clear. Next is deduction under section 80U. Now 80U you should read with this section 80DD. Why? Because 80DD में you get a deduction for the expenditure you incur for your disabled relative. बट अगर डिसेबल्ड रिलेटिव के रिटर्न में डिसेबल्ड रिलेटिव खुद ही डिडक्शन ले रहा है 75,000 का, अगर सीवियर डिसेबिलिटीज है तो 125,000. सो इफ डिडक्शन इज टेकन अंडर सेक्शन 80U, देन यू कैन नॉट टेक डिडक्शन अंडर 80 DDB. ओके, सो 80U में क्या है? मेंटल रिटार्डनेस एंड ब्लाइंडनेस इज ऑल्सो कवर्ड. ओके, let's move to next section 80G. now what is section 80G? is donation for social cause. so अगर आप कोई social cause के लिए donate करते हो, ये सभी के लिए applicable है, company, individual, all, everybody. so इसमें I have simplified this. इसमें there is nothing much to explain. there are funds available, you make money or you donate money into them and you get a deduction. But the point of discussion is the amount of deduction. So fund A are those funds where you get 100% of deduction. Fund B are those funds where you get 50% of the amount contributed as deduction. Okay, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है. फंड सी, फंड डी में कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उस पर लिमिट है. 10% ऑफ योर टोटल इनकम यू कैन कंट्रीब्यूट. एंड देन जो अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है उसका 100% मिलता है फंड सी में और 50% मिलता है फंड डी में. ओके, कैन आई मेक कैश डोनेशन? द आंसर इज येस, अप टू 2000 ओनली. सर व्हाट आर दिस फंड ए, बी, सी एंड डी? so there are nothing to explain in this fund. I have just simplified the funds over here. so this is fund A, 100% deduction. notable one are Swachh Bharat Kosh, Clean Ganga Fund and PM Care funds. so you can see, take a screenshot. Second में 50% deduction where there is no limit on contribution is this: Jawaharlal Nehru, Prime Minister, Indira Gandhi, Rajiv Gandhi. Okay. C and D, fund C and D where there is a restriction on the contribution. There is a restriction on contribution, 10% of your total income, and once contributed, then the deduction limit is 100% for this and 50% for this. So you can take screenshot of these funds. So 80G is clear. Now 80GG. What is 80GG? So you must have heard about
हाउस रेंट अलाउंसेस, HRA। सो अगर आपको HRA नहीं मिल रहा है, कैसे, आप एक ऐसी जगह पे काम कर रहे हो जिसके सैलरी स्ट्रक्चर में HRA नहीं है, या फिर यू आर अ बिजनेस मैन एंड यू आर मेकिंग रेंट पेमेंट टू समवन, सो इन दीज टू केसेस आपको ATG में बेनिफिट मिलेगा। एम्प्लॉयज वू डू नॉट रिसीव HRA और सेल्फ एम्प्लॉयड। नाउ इफ यू आर टेकिंग बेनिफिट ऑफ रेंट, देन लॉजिकली आपके पास घर नहीं होना चाहिए, तो यू शुड नॉट ओन अ रेसिडेंशियल हाउस, नीदर यू नॉर योर स्पाउस एंड नॉर योर माइनर चाइल्ड, तीनों के पास घर नहीं होना चाहिए, तभी ये डिडक्शन मिलेगा। हाउ मच डिडक्शन डिपेंड्स लोअर ऑफ द फॉलोइंग, लोअर ऑफ दीज थ्री, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम और 25% ऑफ टोटल इनकम, 5000 पर मंथ। इन तीनों में जो सबसे कम होगा वो अमाउंट यू विल गेट। ओके सर, कैन आई टेक HRA एंड ATG बोथ? नो, ओनली ईदर HRA और ATG। नेक्स्ट इज ATGGA। ATGGA, what is this? This is for scientific research. There are some institution जहाँ पे you donate the fund and you get a deduction, full deduction. If you donate 1 lakh, you will get a deduction of 1 lakh. ATGGA is applicable to all SACs except those who are doing business. जिनका प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम आता हो उनके लिए नहीं है। दिस ऑल्सो आई हैव सिंप्लीफाइड, सो you can invest your fund or you can donate in research association, university, college which undertake scientific research, point A, या फिर which are doing research in the field of social science and statistical research. So इन दोनों में से किसी एक में इन्वेस्ट करो, the amount you invest you get a deduction 100%. सेकेंड में you donate in the association or institution विच रन रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, कोई रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम रन करते हो, या फिर दे ट्रेन पीपल इन रूरल डेवलपमेंट, किसी दो में कर दो, किसी एक में कर दो, यू विल गेट 100% डिडक्शन। तीसरा ऑप्शन है आप ऐसे पब्लिक सेक्टर कंपनी अंडरटेकिंग में इन्वेस्ट कर दो विच इज अप्रूव्ड बाय नेशनल कमिटी एंड विच कैरी आउट एलिजिबल प्रोजेक्ट, एफोरेस्टेशन, नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन, रूरल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इरेडिकेशन, ऐसे प्रोजेक्ट जो अंडरटेक करे उसमें इन्वेस्ट कर दो, यू गेट 100% ऑफ डिडक्शन। आई थिंक दिस इज क्लियर। कैश डोनेशन नॉट अलाउड, अप टू 2000 यू कैन डू। नेक्स्ट इज डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, या तो कंपनी पॉलिटिकल पार्टी में इन्वेस्ट कर सकता है या फिर अदर देन कंपनी लाइक इंडिविजुअल, पार्टनरशिप वगैरह। सो इंडियन कंपनी अगर डोनेशन दे रहा है पॉलिटिकल पार्टी को तो ATGGB में डिडक्शन लेगा। कंपनी नहीं है, आप अगर डोनेट कर रहे हो इंडिविजुअल तो ATGGC में डिडक्शन लेंगे। ओके, कैश डोनेशन नॉट अलाउड, सिंपल। अच्छा, if any authority is funded by government then that authority cannot claim deduction obviously. next is section RRB. RRB is a special section, मतलब अदर सेक्शन में आप फंड को डोनेट करते हो, डिपॉजिट करते हो, इनकर करते हो तब आपको डिडक्शन मिलता है। RRB में आपको इनकम में से डिडक्शन मिलता है, मतलब कि यू आर अर्निंग अ रॉयल्टी एंड उसी का डिडक्शन मिल रहा है आपको। क्या है, सिंपल है, कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा। मतलब ATRRB इज फॉर दोज पीपल हु हैव इनोवेटिव माइंड। अगर आपने कोई नई बुक, नई किताब, नया इन्वेंशन किया है, सो गवर्नमेंट वांट्स टू रिकॉग्नाइज यू, आपको लोग रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं। सो अगर आपने ऐसा कोई इनोवेशन किया है और उसको आपने रजिस्टर करवा लिया है 1 अप्रैल 2003 में अपने नाम पे, एक नया पेटेंट, ओरिजिनल होना चाहिए पेटेंट, डुप्लीकेट नहीं, सेकेंड हैंड में। सो ओरिजिनल पेटेंट अगर आपने 1 अप्रैल 2003 के बाद से आपने अपने नाम पे रजिस्टर करवाया है and you are showing that income, royalty income in your return, then you can claim deduction of lower of the following: 3 लाख रुपया या रॉयल्टी इनकम जितनी मिली है उसमें जो भी कम होगा वो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। आपको एक सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना होगा कि सी दिस इज माई रॉयल्टी पेमेंट। ओके, सपोज यू आर गेटिंग अ रॉयल्टी फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, तो फिर क्या होगा, सो आपको उस रॉयल्टी इनकम को साल के एंड होने के 6 महीने के अंदर उसको इंडिया में लाना होगा कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी में, और जितना आप अमाउंट लेके आओगे डिडक्शन उसी के हिसाब से मिलेगा। ओके, नेक्स्ट दो सेक्शन जो है वो सिंपल है। ATTTA जो है कि अगर आपने सेविंग डिपॉजिट करके रखा है बैंक्स में तो उसका जो इंटरेस्ट है अप टू 10,000 का आपको डिडक्शन मिलेगा।
उसके बाद में टीटीबी जो है वो नया है। टीटीबी में क्या है, सीनियर सिटीजन को ये डिडक्शन बढ़ा के कर दिया है 50,000। ओके, हम लोग को टीटीए में जो डिडक्शन मिलता है वो सिर्फ सेविंग पे मिलता है। सीनियर सिटीजन को ये डिडक्शन सेविंग, फिक्स डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट सब पे मिलता है। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है एटीई। एटीई में 4 है। एटीई में जो पहला सेक्शन है वो है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन। अगर आपने अपने हायर एजुकेशन के लिए, अपने बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए, स्पाउस के लिए, या एक ऐसे स्टूडेंट के लिए जिसके लिए आप लीगल गार्जियन हो, तो आपको उसके इंटरेस्ट का जो है डिडक्शन मिलेगा 8 साल तक। अमाउंट पे कोई लिमिट नहीं है, 8 साल तक डिडक्शन मिलेगा। दूसरा सेक्शन है 80EE। 80EE किसके लिए, कि अगर किसी ने फर्स्ट टाइम घर खरीदा है, ठीक है, और उसके लिए लोन लिया है, तो फर्स्ट टाइम घर खरीदने के लिए अगर आपने लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट का डिडक्शन है आपको कितना, 50,000 पर एनम। हर साल आपको 50,000 का डिडक्शन मिल जाएगा, बट कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। क्या कंडीशन है, कंडीशन ये है कि लोन आपने FY17 के दौरान लिया हो, 1 अप्रैल 16 से 31 मार्च 17 के बीच में लोन लिया हो। हाउस जो लिया है उसका वैल्यू मैक्सिमम 50 लाख, लोन का वैल्यू मैक्सिमम 35 लाख, और जिस वक्त आपको लोन सैंक्शन हुआ उसके पास, उस वक्त आपके पास कोई रेसिडेंशियल हाउस नहीं था। सो इफ़ यू सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन यू विल गेट 50,000 per year deduction. This is in addition to that 2 lakh which we get under हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन। 2 लाख का जो इंटरेस्ट डिडक्शन है उसके ओवर एंड अबव दैट 2 लाख आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है 80EE। 80EE इज एन एक्सटेंशन ऑफ 80EE, मतलब कि FY17 में अगर किसी ने लोन नहीं लिया है, एलिजिबल नहीं था, नहीं ले पाया लोन, बट अगर FY20 में लोन ले लिया तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा हर साल अप टू ₹1.5 लाख ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, कंडीशन है कि जो लोन का वैल्यू है, सॉरी लोन का नहीं, हाउस का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम 45 लाख हो सकता है या उससे कम, उससे ज़्यादा नहीं। ओके, और आपके पास में ऑब्वियसली घर नहीं होना चाहिए लोन सैंक्शन वाले डेट पे, और आप 80EE में आपने डिडक्शन अगर नहीं लिया है तो ही आपको 80EE मिलेगा। नेक्स्ट और लास्ट है 80EB। 80EB क्या है, ये नया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आपने खरीदी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, और उसके लिए लोन लिया है तो उसके इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको मिलेगा 1.5 लाख रुपया पर एनम। ओके, और ये आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जो लोन लिया है वो इस दौरान लिया हो, FY20 से लेके FY23, इन 4 साल के बीच। सो आई होप ऑल सेक्शन इज कवर्ड। So finally, in the span of 3 videos of 10 minute approx each, you get to know the entire chapter 6A. Okay, so please do the needful. Thank you.